Welcome students. So today we are learning a very important question from the superposition of wave, that is explain analytically how stationary waves are formed. Show that the distance between two successive antinode or node is lambda by 2. So this is the question from the superposition of waves when we are learning about formation of stationary wave. So here we have to explain how stationary waves are formed. So in case of stationary wave, we know that there are two progressive waves. So the first progressive wave having the displacement y1 is given by a sine 2 pi t by t minus x by lambda. So this is the displacement of first progressive wave, and the displacement of second progressive wave will be a sine 2 pi t by capital T minus x by lambda. So this is the displacement of second progressive wave. So in second equation I am giving here plus sign, because we know that in case of stationary wave there are two progressive waves which are traveling in opposite direction. Therefore, so here is one minus sign is there and another one is a plus sign. So in case of stationary wave, according to the principle of superposition of waves, we have to add these two displacement to form a stationary wave. So therefore I will write y is equal to y1 plus y2. तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव के लिए हमें ये दो इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस a sin 2 pi t by t plus x by lambda. Okay, so we have to take common here. So we are taking small a as common, therefore it will be sin 2 pi t by t minus x by lambda plus sin 2 pi t by t प्लस एक्स बाय लैम्डा. ओके, तो यहाँ पे हमने जो a है, स्मॉल a है, वो कॉमन लिया है. तो यहाँ a कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है. सो हियर वी आर यूजिंग वन फॉर्मूला. सो दैट फॉर्मूला इज, see here, so we have to use formula, using formula sin c plus sin d. So 2 sin c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2. So this formula we have to use here. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने a जो है उसको कॉमन निकाला था और ब्रैकेट में साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस एक्स बाय लैम्डा है. तो यहाँ पे भी साइन टर्म है और यहाँ पे भी साइन टर्म है, इसलिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट पहले वेव का था, फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव. सो दिस इज आवर सेकंड प्रोग्रेसिव वेव. According to the principle of superposition of waves, we have to add both the wave. Okay, so let's continue. But here we have to understand this is our C and this is our D. ये जो C और D टर्म है ये हमें यहाँ पे इसे कंसिडर करना है. ओके, सो now putting the values of C and D, we will continue our equation. So y is equal to a इंटू 2 साइन 2 पाई. अभी जो c का टर्म है ये है c का टर्म और ये है d वाला, तो इसे अभी हम पुट करेंगे t बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस टी बाय टी प्लस एक्स बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे हमने c प्लस डी किया है,
इंटू कॉस 2 पाई। दोनों तरफ ये 2 पाई जो है वो कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप में भी आएगा, क्योंकि ये जो 2 पाई जो एंगल है उसे हमें कुछ चेंज नहीं करना है, तो उसे हम कंटिन्यू आगे लिखेंगे. So here I will write t by t minus x by lambda minus t by t plus x by lambda divided by 2. Okay, so you can write a into 2, that is 2a sine 2 pi. See here, t by t minus x by lambda plus t by t plus x by lambda divided by 2 into cos 2 pi in bracket t by t minus x by lambda. यहाँ पे जो माइनस साइन आया है इसकी वजह से ये जो प्लस साइन है ये भी माइनस हो जाएगा. सो t by t माइनस एक्स बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी कुछ कैंसिल होगा, तो ये माइनस एक्स बाय लैम्डा एंड प्लस एक्स बाय लैम्डा विल गेट कैंसल. Similarly here t by t and minus t by t will get cancel. So we can write y is equal to 2a sin 2 pi. तो ये t by t और ये t by t यहाँ पे हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई t. ओके, डिवीजन में 2 है और यहाँ पे भी cos 2 पाई, ये माइनस एक्स बाय लैम्डा माइनस एक्स बाय लैम्डा ये हो जाएगा माइनस 2x बाय लैम्डा और डिवाइडेड बाय 2 है. ओके, सो यू कैन राइट दिस और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पे हो जाएगा y is equal to 2a sin 2 pi 2t divided by 2t into cos 2 pi minus 2x by 2 lambda. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2t बाय ये जो t है और ये 2t हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस 2x बाय 2 लैम्डा हो जाएगा. तो इसके बाद हम यहाँ पे भी ये जो 2 कैंसिल करेंगे. ये 2 कैंसिल होने के बाद y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई t बाई t इंटू कॉस माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पाई से मल्टीप्लाई किया है, 2 पाई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी. ये जो ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है. सो हियर वी कैन यूज अनदर फॉर्मूला. सो जब cos माइनस थीटा होता है तो आप उसे लिख सकते हैं cos थीटा. सो देयरफॉर आवर इक्वेशन बिकम y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाई t इंटू cos 2 पाई x बाय लैम्डा. ओके, तो ये जो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद ये माइनस टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये cos 2 पाई x बाय लैम्डा हो गया. तो इसके बाद हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x बाय लैम्डा एंड हियर साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाय कैपिटल T. तो ये जो cos वाला जो टर्म है इस टर्म के लिए हम अभी कैपिटल A यूज़ करेंगे, उसे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहेंगे. सो दिस 2a cos 2 pi x by lambda I will put here capital A. So our equation becomes, so first I will write put 2a cos 2 pi x by lambda is equal to capital A. तो ये कैपिटल A जो है that is resultant amplitude. So you can write here a sin 2 pi t divided by capital T. So
capital A is the resultant amplitude here. So we can write here this equation as y is equal to A sine 2 pi nt, because we know that n is equal to 1 by t. n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो 1 by t की जगह हम स्मॉल n लिख सकते हैं. सो दिस इज अवर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव. सो कैपिटल वाई से हमने यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो दिखाया है. सो व्हाट इज यर कैपिटल ए? कैपिटल ए इज द resultant amplitude, that is 2a cos 2 pi x by lambda. So this is the question for 4 marks. So after this you have to write the condition for antinode and condition for node. So we will continue with that. So now we will solve for the condition for antinode and condition for node. So here I will write condition for antinode. Okay, and similarly after that we are going to find the condition for node. Condition for node. तो ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको कंडीशन फॉर एंटीनोड और कंडीशन फॉर नोड भी मेंशन करना है. सो इन केस ऑफ एंटीनोड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी प्लस माइनस 2a and here the resultant amplitude will be 0. तो यहाँ पे कैपिटल A का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 2a cos 2 pi x by lambda is equal to plus minus 2a and here 2a cos 2 pi x by lambda is equal to 0. यहाँ पे मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंडीशन फॉर एंटीनोड लिखना पड़ेगा और उसके बाद कंडीशन फॉर नोड लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको इजी होने के लिए मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में ये इक्वेशन लिखना है तो आपको कंडीशन फॉर एंटीनोड के बाद ही कंडीशन फॉर नोड मेंशन करना पड़ेगा. So here this 2a will get cancel. तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 pi x by lambda is equal to plus minus 1. यहाँ पे plus minus 2a क्यों आया है? Because in case of antinode there are two amplitude which we have to add. So plus a will be plus 2a and minus a will be minus 2a. तो आप उसको आगे जाके इस तरह से लिख सकते हैं 2 pi x by lambda is equal to cos inverse of plus minus 1. Okay, and after that we can write the values of cos inverse plus minus 1. So that is 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, so on, and here we can write 2 pi x by lambda. तो ये जो cos इनवर्स प्लस माइनस 1 के वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट किए हैं. अभी उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई है, इसके लिए हम डायरेक्टली p पाई लिखेंगे. सो हियर आई एम राइटिंग p पाई, सो इट विल बी 2 पाई x बाय लैम्डा. तो यहाँ पे जो बेसिकली p है, p की वैल्यू जो है हियर 0 1 2 3 4, these are the values for p. So when we are going to cancel this pi and pi, so x के लिए जो इक्वेशन है that will be p into lambda by 2. Okay, p into lambda by 2. तो अभी यहाँ पे p की वैल्यूज हम पहले 0 पुट करेंगे. तो यहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0. उसके बाद हम 1 पुट करेंगे, सो दैट विल बी लैम्डा बाय 2. देन 2 पुट करेंगे, so it will be like this. So you will get these values. अभी हमें कंडीशन फॉर नोड यहाँ पे फाइंड करना है. ओके, so here I am going to write condition for node. Condition for node. So what is basically node?
द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड। तो ए के लिए यहाँ पे वैल्यू होगा हमारा 0। सो 2a cos 2 pi x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये जो 2a है ये डिवीजन में जाएगा, ये जो 2a का वैल्यू जब डिवीजन में जाएगा तो वो हो जाएगा 0/2a एंड 0/2a विल बी 0। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 pi x बाय लैम्डा और ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0। ओके, तो cos इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यूज़ है π/2, 3π/2, देन 5π/2 से and 7π/2 so on. So here you can write 2 pi x by lambda. तो यहाँ पे हम 2 pi x by lambda जब लिख रहे हैं तो ये π/2, 3π/2, यहाँ पे π/2 कॉमन है और ऑड नंबर आ रहे हैं, इसके लिए हम लिख रहेंगे 2p + 1। तो ये जो 2p + 1 है, यहाँ पे p का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 जब आप पुट करेंगे तो आपको π/2, 3π/2, 5π/2 ये वैल्यू सेटिस्फाई होंगे। तो बेसिकली व्हेन वी आर फाइंडिंग हियर, सो x के लिए इक्वेशन हम जब फाइंड कर रहे हैं तो ये पाई कैंसिल होने के बाद हमारे पास इक्वेशन है 2p + 1 λ/4। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ p। तो p की वैल्यूज पुट करने के बाद λ/4, देन इट विल बी 3 λ/4, नेक्स्ट 5 λ/4, 7 λ/4। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलते हैं। तो ये जो हमने कंडीशन फॉर नोड और कंडीशन फॉर एंटी नोड देखा है उसमें बेसिकली क्या होता है, तो ये जो x के जो वैल्यूज है हमारे पास 0 है, λ/2 है, 3 λ/2 है, ऑल दीज वैल्यूज आर गिविंग अस दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड एंड नोड इज λ/2। क्योंकि आप जब देख सकते हैं जो x है, x में ये जो 0 और λ/2 है उसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, λ/2 है। λ/2 और लैम्डा में डिस्टेंस कितना है, λ/2 है। सिमिलरली नोड में होता है।